और हमने उसका 12 बातें हम उसके आधार पर देखे थे। Today we're going to look into abiding in Christ for fellowship. और आज हम देखेंगे उस प्रभु यीशु मसीह के संगति में बने रहना है। And God willing, tomorrow we're going to see achieving God's goal to fruitful life. और अगर प्रभु का इच्छा है तो हम परमेश्वर का इच्छा को मान करके, पहचान करके एक फलवंत जीवन व्यतीत करने के बारे में If देखेंगे। time permits, I will try to finish 3 and 4 now, and the 5th one will be at the foot of the cross. और प्रभु का अगर हो सके तो मैं आज 3 और 4 बातें को मैं खत्म करना चाहता हूँ। And God is going to help us understand when we look into these valuable truths. और परमेश्वर के जब सच्चाई को हम सीखते हैं तो ये कितना मनोहर की बात है। As I'm just going to, because already we have covered all these things, so I'm just flipping those sheets and I'm moving to the slides where we could be able to understand in a better way. और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी लेके जा रहा हूं ताकि हमारा जो बातें शिक्षा है हम पढ़ेंगे। ये तो पिछले बार हम पढ़ चुके हैं। This is what we saw in the last class. ये विषय है हम पिछले क्लास में देखे थे। I am the door of the sheepfold. मैं उस भेड़ों का दरवाजा हूँ। I am the door of the sheep. और मैं उस भेड़ का द्वार हूँ। And then he says, I am the good shepherd. और आखिरी में वो ये कहते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। Now today we're going to look into, this is what we saw last time about the 12 forms of joy, maturity in the fullness of joy. ये जो पिछले क्लास में हम लोग उस आनंद का भरपूरिता का परिपक्व का विषय में हम लोग देखे थे। Today we're going to continue looking into God's goal, which is abundant life. और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो लक्ष्य स्थल जो कि भरपूरी जीवन के आधार पर है। And what is it all about? और ये सब क्या है? The study is going to be centralized on the very important word called abide. और आज के जो शीर्षक रहेगा कि प्रभु में बने रहना। My dear believers in Christ, let me tell you, we need to figure out the key words in this passage. मेरा प्रिय भाई और बहनों, हमको इस पैसेज में, इस वचन आयतों में से उसका जो मुख्य जो शब्द है उसको हम ढूंढना है। The whole study is based on 3 key words. We call it as 3 verbs in English. और हम ये कहते हैं आज के वचन में जब संदेश में देखेंगे 3 मुख्य शब्द है। इंग्लिश में हम इस अंग्रेजी में ये कहते हैं कि 3 क्रियाबद्ध है। And 3 things it talks about. और इसमें 3 बातों को लेकर के बात कर रहे हैं। I kindly draw your attention to chapter 10 verse 1. मैं आप लोगों का ध्यान को 10 अध्याय और उसका 1 आयत में लेना चाहता हूँ। You can see the word called enter. He that entereth not by the door into the sheepfield. और यहाँ पर हम देखते हैं कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता परंतु किसी दूसरे और से चढ़ जाता है, वो चोर के डाकू है। इसमें एक प्रवेश का शब्द देखते हैं। Second verse is telling, but he that entereth in by the door. ठीक है। I think someone is talking. Please mute yourself so that there won't be any problem. भाई को होस्ट लोग जो भी है, जो लोग बात कर रहे हैं उनको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। Yes sir, please repeat once again. Yeah, second verse also talks about the word called enter in by the door. और यहाँ पर हम ये देखते हैं दूसरा वचन में भी उस द्वार से भीतर प्रवेश करना। 2 times it talks about the word enter. और 2 बार यहाँ पर दोहराया गया है प्रवेश को। Enter talks about the true shepherd. और यहाँ पर जो प्रवेश करना वो एक अच्छा चरवाहा को दिखाता है। So there are very 3 most important things you should note when you're studying this chapter 10. और इस 10 अध्याय का जो 3 मुख्य शब्द है आप लोगों को लिखना और याद रखना बहुत ही जरूरी है। Who enters and how he enters. और कौन अंदर प्रवेश करता है और कैसे प्रवेश करता है।
enter by the door. और उस द्वार के द्वारा ही प्रवेश करना. Okay, coming to the next word. So that talks about the true shepherd. Coming to the second word. और अभी हम दूसरा आयत में देखते हैं जो कि उस अच्छा चरवाहा के बारे में बात करते हैं. Chapter 10, verse 14. और उसका 10 अध्याय और उसका 14वां आयत अभी हम देखेंगे. I am the good shepherd and know my sheep. अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं. और To know. See the word to know? यस जानता हूं. Yeah, that is a very important word. और इसमें भी जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है. To know talks about true flock. और ये जो सच्चा जानना है, एक सच्चा भेड़ों के समान है. The flock should know the shepherd. और ये भेड़ उनको चरवाहा को जानना बहुत ही आवश्यक है. So I would draw your attention to the second key word. और मैं आप लोगों का ध्यान को उस दूसरा मुख्य पद में लेके जाना चाहता हूं. To know the shepherd, the true shepherd. और अच्छे चरवाहा को, अच्छे भेड़ों को जानना. In the flock, there are two kinds of flock. और हम जब भेड़ों के बीच में देखते हैं तो दो प्रकार का भेड़ को हम देख सकते हैं. Look at verse 16. और आइए हम 16वां आयत को देखेंगे. The other sheep I have. What is that? The other sheep I have. और यहाँ पर हम देखते हैं और भी मुझे भेड़ है, और भी दूसरा भेड़ है. So you can notice very carefully, this is talking about the other sheep. और इसमें हम देख सकते हैं मेरी और भी भेड़ है. So you can see that the true sheep should follow, the true flock should know. और यहाँ पर एक अच्छा एक सच्चाई जो भेड़ है, उस सच्चाई चरवाहा को देखना चाहिए, उसके अनुकरण करना चाहिए. Can you read verse 27 please? क्या आप 27 आयत को पढ़ेंगे? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं. Very important. You can see that very clearly. You can see that. Can you see that? How it talks about the word called follow. और क्या आप इसमें देख सकते हैं कितना साफ रीति से लिखा गया है, वो मेरे पीछे लेते हैं. I want you to closely look at this picture now. Take a look at this picture. मैं आप लोगों को इस पिक्चर को देखने के लिए मैं आप लोगों को मैं चाहता हूं. And you see that the two types of sheep Jesus is talking about? क्या आप इसमें देख रहे हो दो प्रकार का जो भेड़ के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं. It is not only the Jews. ये नहीं केवल यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, also the Gentiles. और अन्य जाति के बारे में भी यहाँ बात किया जा रहा है. He always talks about both the types of sheep. और हमेशा प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार के भेड़ों के बारे में बात करते हैं. So now with the rest of the time we're going to cover that the third and the fourth mark of abundant life. और आगा जो आने वाला समय में अभी हम जो 3 और 4 बातें को हम देखते हैं जो कि एक सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल होना चाहिए. My dear believers in Christ, I want you to note these 3 words carefully. मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस 10 अध्याय में जो 3 मुख्य शब्द है उसको ध्यान में रखने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं. To enter, प्रवेश करना, to know, जानना, follow. और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना. To enter makes everyone understand who is the true shepherd. और प्रवेश करना कौन है अच्छा चरवाहा को बारे में जानने के लिए मदद करता है. To know talks about the true flock. और जानना एक सच्चा भेड़ को दिखाता है. Follow talks about the true sheep. और अनुकरण करना या पीछे हो लेना जो सच्चाई या सही
भेड़ को दिखाती है। My dear believers, today's lesson is going to be not only interesting but a very important lesson for every believer. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का जो संदेश नहीं केवल दिलचस्पी होगा, लेकिन हमारा जो आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। So carefully you should notice, as every reference I'm just going to give you also. और मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे जितना भी रेफरेंस दिया जाता है, बहुत ही सावधान पूर्वक लिख लीजिएगा। So today's topic is going to be on abiding in Christ for fellowship. और आज का जो शीर्षक, जो संदेश का शीर्षक ये है कि प्रभु यीशु मसीह में संगति के लिए बने रहना। First we'll see in the Gospel of John where is the word abide used. Then we'll go to the Epistle of John to study about the word abide. और सबसे पहली बात, योना रचित सुसमाचार में किस जगह पर उस प्रभु में बने रहना का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको देखेंगे, फिर हम उस योना पत्री में भी देखेंगे। Let's continue now. It's going to be very interesting now. Let's continue the study now. और ये बहुत ही दिलचस्पी होगा, आइए हम इसको आगे रखते हैं। Jesus is talking in John chapter 15 about the true wine. और योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता के बारे में बात कर रहे हैं। It is not only the true shepherd. लेकिन वो नहीं केवल एक अच्छा चरवाहा है। Here is focusing about the true wine. और यहाँ पर एक अच्छी या सच्ची दाखलता के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। It is not only about eternal life. ये नहीं केवल अनंत जीवन के बारे में है। It is also about abundant life. और ये भरपूरी जीवन के, प्रचुर जीवन के बारे में भी है। So how do you know that I am living in abundant life? आप कैसे जान सकते हैं कि मैं एक भरपूरी जीवन या प्रचुर जीवन व्यतीत कर रहा हूं? This is the most important mark of understanding that a believer is living in abundant life. और उस भरपूरी जीवन को व्यतीत करने का जो सबसे मुख्य विषय यहाँ पर जिक्र किया गया है कि प्रभु में बने रहना। Look at the word, then I'm going to come to the context of the passage. और उस शब्द को देख लीजिए और उसके बाद मैं इस वचन का जो जिस पोर्शन का हम लोग लिया है उसका संदर्भ में आता हूं। Chapter 15, he talks all about the true wine and my father is the husbandman. और 15 अध्याय, पूरा 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को सच्ची दाखलता के बारे में और पिता को किसान के रूप में संबोधित किया गया है। He's talking about Jesus is the true wine. और यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। And my father in heaven, he is the husbandman. और मेरा स्वर्ग का पिता है, स्वर्गीय पिता, वो है किसान। In this connection, he is using, I'm going to come to the explanation a little later, but I'm going to capture your attention with the word found in verse 4. और मैं इनको सारे बातें को बहुत ही अच्छे से व्याख्या करूंगा, पूरा डिटेल्स। उससे पहले एक जो शब्द इसमें मिला गया है उसको पहले देखेंगे। How many times you see the word abide coming there? और इस अध्याय में अब कितने बार एक शब्द को दोहराया गया है, उसको कितना बार देख सकता है, प्रभु में बने रहना। You can see in verse 4. और आप उसको 4 आयत में देख सकते हैं। Abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। Look at the word abide. This is a verb, very important verb for us to understand. और ये है बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो क्रिया है, बने रहो। So when you say abide means what? Abide means what? और बने रहने का मतलब क्या है? To remain or to stay. उसका मतलब किसी के साथ ठहरा करना या किसी के साथ बने रहना। The word in the verb Greek, the word is called meno, means stand fast, remain, don't move, be there. और यूनानी शब्द में इस शब्द का यूनानी शब्द है मेनो, जिसका मतलब किसी के साथ बने रहना और उनके साथ दृढ़ में बने रहना और वहां से हिलना नहीं। We have to go to the root of the word to understand why did Jesus use this word while speaking. और ये बने रहने के शब्द का जो मूल भाषा को हमको देखना है और प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को इस्तेमाल करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। The most important word is in
in abundant life is to abide in Christ. और भरपूरी जीवन का जो मुख्य विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, प्रभु में बने रहना, Not be wandering in your beliefs. और अपने जो समझ में, अपने जो विश्वास में उसके सहायता इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। That is why chapter 15 of John's Gospel is very, very important for every believer. और इसीलिए योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हर एक विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। He uses 34 times in the Gospel. और जो प्रेरित यूहन्ना इस शब्द को 34 बार इस सुसमाचार में जिक्र किया गया है। 19 times he uses in the Epistle of John. और 19 बार उनका जो एपिसल में, उनका जो पत्री में जिक्र किया गया है। In the senior classes, when I'm taking grade 11 and 12, senior Sunday school classes, I give them homework. 2 weeks ago, I gave them homework. Find out the word abide in the Bible, in John's Gospel, in John's Epistle, and then in the New Testament completely. मैं जब बड़े लोगों का संडे स्कूल लेता हूं, जैसा 11 12 बच्चे का, तो मैं उनको एक गृह कार्य देता हूं कि आप अपने घर में जाकर के सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार में ये सब कितना बार लिखा गया है, पत्री में कितना बार लिखा गया, पूरा बाइबल में कितना बार लिखा गया है, उसको ढूंढ के लाओ करके मैं कहता हूं। It's very important, before I give the meaning of anything, we need to see that where it is mentioned, how it is mentioned. और किसी भी शब्द को, उसका मतलब को जानने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि ये शब्द कहीं और इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। Now I'm just going to take you the study of the word abundance, or the word abide, how it is beautifully mentioned. I'm going to use the word ABUNDANCE, the 9 steps of understanding the word abide in the scripture. और वचन में जो बने रहने का शब्द को समझने के लिए 9 पड़ाव हुए, जिसको हम जान करके अच्छे से जान पाएंगे कि उस भरपूरिता जीवन में एक बने रहना क्यों महत्वपूर्ण विषय है। Always I study in my easy way of understanding, so it is easy for me to understand and easy for me to teach also. गब्बर भाई साहब, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो हम इसमें देखते हैं, जब भी मैं परमेश्वर का वचन को सीखना चाहता हूं, तो मैं एक बहुत ही सरल तरीका से सीखने के लिए कोशिश करता हूं, और वही विषय मैं दूसरों को भी सिखाता हूं। Let's open our scripture and study it one by one. आइए परमेश्वर का वचन को, बाइबल को निकाल करके एक के बाद एक देखेंगे। What 1 or 2 minutes we're going to concentrate on each verse, and I'll quickly move. और 1 या 2 मिनट एक पॉइंट को बारे में हम अध्ययन करेंगे और जल्दी जाएंगे। Because after finishing this, I'm going to come back to chapter 15, a most important chapter for us. क्योंकि इसको खत्म करने से पहले मैं 15 अध्याय में आना चाहता हूं। Okay, let's study now 1 John chapter 2 verse 6. और पहला यूहन्ना, कोई भाई पढ़ने के लिए मदद कर दीजिए ताकि समय ज्यादा ना हो जाए। Yeah, someone can just read 1 John chapter 2 verse 6. कोई भाई है पढ़ने के लिए? जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। Okay, this is talking about the abiding grace. यहाँ पर अनुग्रह में बने रहने के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, now why did he use that word there? और यहाँ पर वो इस शब्द को क्यों इस्तेमाल किए? This talks about a spiritual walk of a believer. और ये एक मसीह जीवन का आत्मिक चालना के बारे में है। Last class I told you, और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, verse 4, और उसका 4 आयत, to know him. उनको जानना, To know him is eternal life. और उनको जानना अनंत जीवन है। People are very happy that they know him, that's all. और लोग बहुत खुश है कि वे वो प्रभु को जानते हैं। More than that is to keep his word.
और उससे बढ़ करके परमेश्वर का वचन को हमारा हृदय में रखना है। And then he says, abide in him. और उसके बाद वो ये कहते हैं कि प्रभु में बने रहना। Abide in him is a spiritual walk. और प्रभु में बने रहना आत्मिक चलना है। Okay, now let's go to the second one. आइए हम उसका दूसरी बातें को देखते हैं। उसका 10 आयत, Chapter 2, verse 10. जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। He that loveth his brother abideth in the light. और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। This is spiritual love. और ये एक आत्मिक प्रेम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। You are born again to love. और आपने उद्धार पाए इसीलिए कि अपने भाइयों को प्रेम करना है। Oh, that love which can never separate us from God and man. और वो प्रेम, ये प्रेम है वो कभी भी हमको परमेश्वर से, ये मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। That love which is sacrificial. और ये एक करने का एक प्रेम है। And that love is to love the Lord with all your heart, with all your mind and all your soul, and to love your neighbor. और ये प्रेम वो है कि अपने परमेश्वर को मन, प्राण और आत्मा से उनको प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करना। Oh, how important it is, my dear brethren, to love our brother in Christ. मेरा प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में जो भाई और बहनों हैं उन लोगों को प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण बात है, बाइबल में जिक्र किया गया है। If you don't have that love, according to Apostle John, in this book, he says that he or she is not at all a believer. और प्रेरित यूहन्ना के द्वारा इस पत्र में जब हम देखते हैं, अगर कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो उसका मतलब वो एक सच्चा विश्वासी नहीं है। Third reference, 1 John chapter 2 verse 14. और उसका दूसरा अध्याय और 14 आयत में हम देखेंगे। Look at that verse, please. 14 आयत पढ़ दीजिए भाई। ये मेरे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने इसलिए तुम्हें लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ। परमेश्वर का वचन में बने रहता है और तुम में उस दुष्ट आत्मा पर जय पाई है। Note very carefully how beautifully is explaining from verse 12 to 14. और यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि 12 आयत से लेकर के 14 आयत तक कितना अच्छे से वो लोग व्याख्या कर रहे हैं। In the church there are 3 groups of people. और कलीसिया में 3 झुंड के लोगों को हम पाते हैं। Little children, और छोटे बच्चे, verse 12, और उसका 12 आयत में, verse 13, और 13 आयत में young men, लड़कों लोग, verse 14, और 14वां वचन में fathers. और पितरों को देखते हैं। So how do we know that who are the children, who are the youth, and who are the fathers? और हम कैसे जान सकते हैं कि कौन लोग बच्चे हैं, कौन लोग बालक हैं, कौन लोग लड़के हैं और कौन लोग पिता लोग हैं? In the spiritual realm I'm talking about. मैं यहाँ पर आत्मिक तौर से बात कर रहा हूँ। Because we know very well that in the physical realm we look at the age of a person and say that he is old. और हम जानते हैं कि जब शारीरिक तौर से जब देखते हैं उसका जो आयु को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सी लेवल का व्यक्ति है। Apostle John is teaching in a different way. और प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर एक बहुत ही अलग तरीका से सिखा रहे हैं। Look at the 12th verse. आप 12 आयत को देख लीजिएगा। Your sins are forgiven. और आपके पापों का क्षमा हो गया है। That means you are talking about little children. और उसका मतलब आप उस बालकों को बारे में बात कर रहे हैं। Every time you come, every week you come, and every time you go to the place, you are happy that your sins are forgiven. You are in the stage of little children. और जब भी आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप आकर के खुश रहते हैं, उसका मतलब आपका जो पाप को क्षमा हो गया है और परमेश्वर के नजर में आप बालों को समान हैं। But look at the 13th verse.
और आइए हम 13 वचन को देखेंगे। How do you know that you are young men? आप कैसे जान सकते हैं आप जवान हो? Oh, he's talking about what? He's talking about overcoming the wicked. और यहाँ पर उस बुरे और दुष्ट लोगों को से जय पाना है। And then when he's talking about the 14th verse, और जब वो 14 वचन में पढ़ते हैं he's talking about fathers. और यहाँ पर पिताओं के बारे में बात करते हैं। Who are the fathers? इसमें कौन पिता He है? makes the difference between young men and fathers. जो कि उस बालकों और जवान से अलग है। Okay, you can see in the 14th verse, fathers, 14वां वचन आप देख सकते हैं। you have known him from the beginning. आप उनको पहले से ही जानते हैं। I have written unto you, young men, मैं हे जवान मैं तुमसे लिखता हूँ। you are strong, तुम बलवंत हो and the word of God abideth in you. और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। You have overcome the wicked. और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। So those who are abiding in Christ will become overcomers. जो प्रभु में बने रहते हैं वो गलत कार्य को पराजय करते हैं। Okay, there is no much time, so I'm moving to the next one. और समय के कमी के कारण मैं जल्दी ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। Chapter 2, verse 17. और उसका दूसरा अध्याय और उसका 17वां वचन। Yes, please. संसार और उसकी अभिलाषा दिनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। Oh, now why does he use the word abide here? और यहाँ पर बना रहेगा का शब्द पर उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? What is the writer Apostle John trying to emphasize? और यहाँ पर लेखक जो प्रेरित यूहन्ना जो लिखने के लिए उनका क्या उद्देश्य है? A born again believer, when he is baptized, he needs to separate himself from the world. एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी को बपतिस्मा लेना बहुत ही आवश्यक है और वो अपने आप को अलग कार्य से अलग करना है। 15th verse is telling, और 15वां वचन इस प्रकार से लिखा गया love है, not the world, और तुम न जगत से और न संसार में की वस्तु में प्रेम रखो, love the Father. और परमेश्वर से प्रेम रखो। But in 16th verse he says, और 16वां वचन में हम देखते हैं, all that is in the world is not given by the Father. और जो कुछ हम संसार में देखते हैं वो सारे परमेश्वर पिता के द्वारा नहीं दिया गया है। We have to be very careful. When we love the world, we are having problem with the Father in heaven. और हमको यहाँ पर देखना है कि जब हम संसार को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। Many times in many youth conferences and we're working among the children, parents ask this question, what are the best channels my children should see in the TV? और बहुत सी यूथ कैंप में या चिल्ड्रन कैंप में ये बताते हैं कि मेरा बच्चे के जीवन में देखने कौन सा विषय अच्छा है। What channel should they see? और मेरे बच्चे लोग को कौन सा चैनल दिखाने के लिए अच्छा लगेगा? I tell them, I don't know how to calculate which are the best channel, but let me tell you what is John chapter 2 verse 16 telling. और मैं उन लोगों को ये नहीं बताता हूँ कि मुझे उस टीवी के बारे में कोई चैनल के बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं उनको ये वचन दिखाता हूँ। These are the 3 channels you have to be very careful. और ये जो 3 जो माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत ही सावधान होना चाहिए। Those of you who want to talk to your children or grandchildren, take care and tell them and teach them as parents that we have to be very careful with 3 important channels. और यहाँ पर अपने नाती पोतो बेटा बेटी सबको आप बिठा करके ये इन 3 माध्यम के बारे में आप बात कर सकते हैं उनसे। The lust of the flesh, और शरीर का अभिलाषा, lust of the eyes, और आंखों की अभिलाषा, pride of life. और जीवन का घमंड। These are the 3 channels you have to be very careful when you're watching television. और इन तीनों माध्यम को बहुत ध्यान में रखना जब आप टीवी देखते हो। If you can protect yourself from this, you're protecting yourself and you're going to abide in Christ. अगर आप इन तीनों विषय से अपने आप को सुरक्षित रखते हो, उसका मतलब आप परमेश्वर प्रभु में बने रहेंगे।
Because the world will pass away. क्योंकि संसार एक दिन नाश होने वाला है The lust of the world will pass away. और शारीरिक अभिलाषा भी खत्म हो जाएगा। Look at the verse 17. और उसका 17वां वचन को देखिए, What will stay? और क्या यहाँ बना रहेगा? He that doeth the will of God will abide in me. He word says. पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। So we saw the spiritual walk, और यहाँ पर हम देखते हैं एक आत्मिक चलना, spiritual love, आत्मिक प्रेम spiritual overcomer, और आत्मिक जीतने वाला, spiritual separation. आत्मिक अलगावपन। Let's look at verse 24. और आइए हम उसका 24वां वचन देखेंगे। 24, what does it say? और 24वां वचन में यहाँ क्या लिखा गया है? Let that therefore abide in you who have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, ye shall also continue in the Son and in the Father. जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बना रहेंगे। My dear believers in Christ, what an important word it is. मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये कितना महत्वपूर्ण एक शब्द है। How do we know that you are abiding in Christ? हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु में बने रहते हैं? Oh, it is not only the spiritual separation, but you should have a spiritual fellowship with God the Father and the Son. मेरा प्रियो भाई और बहनों, ये नहीं केवल एक आत्मिक अलगावपन है, लेकिन ये आत्मिक संगति है। पिता परमेश्वर के साथ संगति, पुत्र परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत ही आवश्यक है। Oh, we need to know, I know him, and also you need to keep his word. Both are important. और ये दोनों बातें बहुत ही आवश्यक है। मैं उनको जानता हूँ, उनका वचन को मैं रखता हूँ। Oh, let's go move to the next one now. आइए हम उसका और भी आने वाले बातें देखते हैं। Verse 28. और उसका 28 वचन। Spiritual standing, note that very carefully. और यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक खड़े होना। Little children, abide in him, that when he shall appear, ye may have confidence and not be ashamed before him in his coming. हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हम हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। On that day we are going to stand in front of him. और उस दिन, वो आने वाले दिन में हम परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं। Everybody will go to heaven, those who are believed in the Lord Jesus Christ. जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। But those who live the abundant life will be different from eternal life. और जो लोग भरपूरी जीवन को व्यतीत करते हैं वो अनंत जीवन से अलग है। There are two kinds of people in heaven. और स्वर्ग में दो प्रकार का लोग को हम देख सकते हैं। Who are those two people? ये दो प्रकार का लोग कौन है? What are the two groups? और दूसरा झुंड का क्या नाम है? Ashamed children and confident children. Two groups are there. और पहला जो ग्रुप का नाम है लज्जित लोगों का समूह और जो हियाव के साथ खड़े रहने वाले। My dear believers, let's be very careful. To which group do we belong? मेरा प्रिय भाई और बहनों, हम सबको निर्णय लेना है कि मैं कौन से ग्रुप में शामिल हूँ। Look at the verse 28. I'm talking about 28. It's not my thinking. It is verse 28 I'm talking about. मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये मेरा मनोभाव नहीं है, लेकिन वचन 28 में जो लिखा गया है उसके आधार पर मैं आपसे बोल रहा हूँ। Two groups of people. दो प्रकार के झुंड के लोगों को देखते हैं। Confident children and ashamed children. हियाव से खड़े होने वाले वो बालकों और लज्जित बालकों के बारे में देखते हैं। So this talks about the spiritual standing of a believer in Christ who has abundant life. और प्रभु यीशु मसीह में एक आत्मिक खड़े रहने का बारे में यहाँ पर देखते हैं हम। Look at the book of Hebrews. और आप इब्रानियों की किताब में देख लीजिएगा, chapter 10. और उसका 10 अध्याय। Again, the apostle, the writer, when he's writing,
he again talks about the same point. और यहाँ पर प्रेरित लेखक इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि फिर से उसी शब्द को दोहराया गया है। Kindly come to Hebrews chapter 9. और मेरे से वचन खोलिए 9 अध्याय, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय। Note carefully, he's talking about two things. और यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि दो बातें को दिया गया है। Sorry, it's found in chapter 10. ओके, माफी चाहता हूँ, ये 10 अध्याय में लिखा गया है। Verse 32. और उसका 32 वचन में लिखा गया है। Those who endured a great fight of affliction. परंतु उन पिछले दिनों का स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुख के बड़े संघर्ष में स्थिर रहो। There is one group who endures the great faith and the great fight with affliction. और यहाँ पर एक झुंड के लोगों को देखते हैं जो कि उस बड़े दुख के साथ संघर्ष करने वाले। Why? क्यों? Verse 34 says, और उसका 34वां वचन इस प्रकार से कहता है, they had an enduring substance called faith in Jesus Christ. और उन लोगों का जो संघर्ष में स्थिर रहने का ये था कि प्रभु में वो लोग दृढ़ विश्वास में बने रहे। What about verse 38? और उसका 38वां वचन क्या कहता है? There is another group now. यहाँ पर एक और झुंड के लोग को देख सकते हैं। Verse 38, read carefully, you can find out there's another group now. और इसको ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर एक और झुंड के लोग के बारे में देख सकते हैं। What is that group called as? और ये ग्रुप को क्या क्या कहा जाता है? Drawing back. They are shrinking. Verse 38, you see that? Draws back, my soul shall have no pleasure in him. Okay. Verse chapter 10 and 38. Correct. Okay. Is it given? The just shall live by faith. Okay. पर मेरा धार्मिक जन Anyone lives. Yeah, correct. विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। Those who are drawing back. और जो लोग पीछे हट जाते हैं, See, those who are enduring. और जो लोग उस स्थिर में रहते हैं, so those who are standing and those who are shrinking, there are two groups. और यहाँ पर जो लोग सिकुड़ जाते हैं और जो लोग मजबूत होकर के खड़े होते हैं। So the Bible makes it very clear, there are two groups of people, two groups in believers in heaven. They're going to stand in heaven, my dear believers in Christ. Notice carefully. और बाइबल ये बताती है कि स्वर्ग में दो प्रकार का विश्वासी को देख सकते हैं, एक हियाव के साथ खड़े होने वाले और एक सिकुड़ जाने वाले विश्वासी को हम देखने के लिए पाएंगे। Others will be getting the rewards for the works they have done, and one group will feel ashamed. और कुछ लोगों को, एक झुंड को परमेश्वर मान सम्मान दे करके उनको इनाम दे करके उनको खुश करेंगे, और दूसरा ग्रुप को है वो लज्जित होंगे वो लोग। Let's come back to 1 John chapter 2. आइए हम पहला योना में वापस आ जाएंगे। How is the spiritual standing of those who abide in Christ, who have the abundance of life? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और उस भरपूरी जीवन को व्यतीत करते हैं, उनका जो आत्मिक स्थिति कैसा है? Oh, my dear believers in Christ, let's look into that last two references for today. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज के क्लास के जो दूसरा वचन को हम देखेंगे। Chapter 3 verse 6 now. और उसका तीसरा अध्याय और 6 वचन को देखेंगे। 1 John chapter 3 verse 6 now. पहला योना 3 अध्याय उसका 6 वचन। Whosoever abideth in him sinneth not, whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। Oh, the last two are very important symptoms to understand who is a true sheep or a true believer. मेरा प्रिय भाई और बहनों, कौन एक सच्चा भेड़ है और एक सच्चा विश्वासी है, इस वचन को पढ़ने के बाद हमको उसका जो चिन्ह को हम समझ सकते हैं। The Christian identity is found in this verse. मसीह का जो परिचय इस वचन में लिखा गया है।
He's telling that you are not going to be the way in which you were before. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर रहे थे, वो जीवन और आगे आप व्यतीत नहीं कर पाएंगे। Because when a born again believer is born, his nature is changed. He has a new nature, the nature of Christ, that is the nature of holiness. और जब परमेश्वर में उद्धार पाते, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करके, विश्वास करके उद्धार पाते, तो उसका पुराना जीवन का स्वभाव बदल जाता है और प्रभु का स्वभाव उसको मिलता है। My dear believers in Christ, do you know exactly what happened to you when you met the Lord at the cross for the first time? What happened? मेरा प्रियो भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं जब आप उस प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर मिला है, उस समय क्या हुआ आपके साथ? Please come to Hebrews chapter 10. और मेरे साथ निकालिएगा उसका इब्रानियों की उसका 10 अध्याय verse 16. और उसका 16वां वचन। This is the covenant I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and their minds will I write them. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। Oh, my dear believers in Christ, how important it is for us to understand this. मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को समझने में कितना महत्वपूर्ण है। He has put the laws into their hearts. और वो उनके नियमों को उनके हृदय में लिखा है। See, we have a God conscious heart. सो हमारे परमेश्वर को जानने का एक हृदय है। The laws of God are inside our heart. और परमेश्वर का नियम हमारा हृदय में है। But what did he do in the mind? लेकिन वो हमारे मन में क्या किया? He is writing with his fingers. Notice carefully. और यहाँ पर देखते हैं कि वे अपने उंगली के साथ लिखते हैं। How beautiful it is for us to understand that he is writing it. Lord Jesus wrote in our mind. और ये कितना एक दिलचस्पी की बात है कि प्रभु ने हमारा हृदय में अपने उंगली के साथ लिखा है। You know what did he write exactly? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या आपके हृदय में लिखा है? What did he write in your mind when you came for the first time, when you believed on the Lord Jesus Christ and you came to the cross and you accepted and you received Lord Jesus into your heart? What did he write? क्या आप जानते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया, विश्वास किया, आपके मन में परमेश्वर ने क्या लिखा, क्या आप जानते हैं? Verse 17. और उसका 17वां वचन। Their sins and iniquities I will remember no more. और यहाँ पर लिखा गया है, फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। And praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Oh, he has written. What did he write? और वो क्या हमारा मन में लिखे हैं? Your sins and iniquities will I remember no more. और उनके पाप और अपराध को कभी भी स्मरण नहीं करेंगे। You are identified as a true Christian from today onwards. और आज से लेकर के आगे तक आप परमेश्वर के एक सच्चा विश्वासी बन गए हैं। Your nature is changed. आपका स्वभाव बदल गया है। Your heart is changed. आपका हृदय बदल गया है। In the heart my laws are there. और परमेश्वर का नियम आपके हृदय में है। In the mind I'm writing with my fingers. और मैं आपके उस मन में अपने हाथों से लिखता हूँ। Oh, my dear believers, what a wonderful relationship that is with our Father through our Lord Jesus Christ. ओ मेरा प्रिय और भाई और बहनों, उस पिता परमेश्वर के साथ हमारा कितना एक सौभाग्य का एक जो संगति है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। We praise and thank God for that. हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। Oh, let's come back to our portion where we started, 1 John chapter 3. और आइए हम जहां से शुरुआत किए हैं वहां वापस चलते हैं। Oh, my dear believers, note very carefully. और इसको ध्यान में रखिएगा। Oh, chapter 3, verse 6 talks about it very clearly. Whosoever abideth in him sinneth not, which means the old practice of sin, the old habits of sin should not come again.
और हम 6 वचन में 3 अध्याय 6 वचन में देखते हैं, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि पुराना स्वभाव को और नया स्वभाव में नहीं मिलाना है। I have seen many times people talking about he is angry. He is always an angry person. If his father also was an angry person, he also is an angry person. This cannot be a believer's attitude. और मैं ये बातें सुना है कि वो एक बहुत गुस्सा करने वाला है, उसका पिता भी बहुत गुस्सा करते थे और ये भी बहुत गुस्सा करता है। ये एक सच्चा विश्वासी का प्रतीक नहीं है। Oh, my dear believers, let me come to the last verse for today. मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज के क्लास का जो आखिरी वचन में मैं आना चाहता हूँ, 15 and 16. 15 और उसका 16वां वचन। Ah. और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। Whosoever hateth his brother is a murderer. We know that no murderer had eternal life abiding in him. और इसमें हम देखते हैं, जो कोई अपना भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और कोई हत्यारा अनंत जीवन का भागीदार नहीं होता है। No murderer has eternal life abiding in him. और कोई हत्यारे को उस अनंत जीवन नहीं मिला है। Because the love of God is inside. क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम उनमें है। We have laid down his life for us. और प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। Now what we should do? अभी हमको क्या करना चाहिए? We should lay down our lives for the brethren. और हमारा जीवन को हमारा भाइयों के लिए भी देना चाहिए। Many believers know John 3:16, but they don't know 1 John 3:16. बहुत से विश्वासी लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वां वचन को। My dear believers and guys, my time is running out. मेरा प्रिय भाई और बहनों, मेरा समय बढ़ते जा रहा है। After 15 minutes, I'm going to start. There is a next class here for me to start in Sharjah. और शारजा में मेरे लिए एक और जो क्लास लेना है, जो 15 मिनट के बाद चालू होगा। So I'm going to stop my lesson here. और मैं आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। God has helped us today to concentrate on the 9 steps of an abundant life, which is abiding in Christ. Abiding in Christ has 9 steps. परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमको उस भरपूरीता जीवन के बारे में और उसमें प्रभु में बने रहने का जो 9 बातें को सीखने के लिए आज परमेश्वर हमको मदद किया है। Oh, I do not have time to talk about chapter 15, John chapter 15. God willing, tomorrow we're going to spend little time about the fruitful life and the life of the cross. और कल अगर प्रभु का समय होगा तो एक फलवंत जीवन के बारे में और उस क्रूस का चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। May God's name be glorified with today's teaching of the holy and unchanging word of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है। Thank you for your patient listening, and I praise and thank God for this wonderful opportunity given this morning time. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं इस सुबह के समय में, और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत ही धीरजता के वचन को सुना। And may the Lord's name be glorified. परमेश्वर की महिमा हो। Amen. Amen. Thank you so much, sir. Really, the message which you were sharing, it was heart touching.